Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our new lecture. Lecture number 8. Web Technologies in Programming. In this lecture, we will study how to add image, audio files and video files using HTML in the web pages. Before proceeding to the next lecture, let's see the summary of the previous lecture. In the previous lecture, we have studied internal links, that are local links, that are residing those web pages which are on your local server that are linked. For these, you can directly mention the file name and you don't need to mention the complete path. But if it is in another subdirectory, in another folder, then with the folder path you have to mention the name of the document with the file extension that you want to link. External link. External links are those links which are linked for third website, another website, and here you have to give the absolute path of the file. Then we have studied directory structure. In that, we discussed about root directory, we discussed about parent directory, we have also discussed about child directory. So a directory is basically a name of a folder, a subdirectory. Then we have discussed how to reference the document. Here we have seen the location name for a particular jump page. If you want to have a location name, you can use that. Then here we have also seen some other attributes, including target attribute for opening the jump page either in the current window, in the new window, and etc. And then we have discussed few other types of hyperlinks for downloaded file and for email too. So this is all about our previous lecture. What we will study in today's lecture: adding images to web pages, using images as link, image map, adding videos to web pages, adding audio to web pages. So in the today's lecture, we will discuss images. टेक्स्ट को हमने लास्ट टाइम देखा, टेक्स्ट को कैसे हाइपरलिंक करते हैं. आज के लेक्चर में हम इमेज को वेब पेज में हाइपरलिंक करना देखेंगे. इमेज को एज अ लिंक बनाना, लिंक से इमेज की तरफ रीडायरेक्ट करना. एक इमेज के मल्टीपल पार्ट्स हैं, किसी पार्ट को हाइपरलिंक करना, वीडियोस को हाइपरलिंक करना, ऑडियोज को हाइपरलिंक करना. डिटेल में हम लोग विद एग्जांपल्स आज स्टडी करेंगे. एडिंग इमेजेस टू वेब पेज. फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजेस को, इमेज टैग इज यूज्ड टू ऐड इमेजेस टू वेब पेजेस. सो इमेज का टैग यूज होगा, स्टार्टिंग टैग सोर्स के तौर पे यूज होगा. सो src is the source attribute for the image tag. And what does it indicate? It indicates कि इमेज आपने जहां से उठाना है, जिस इमेज को यूज करना है, वो किस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है. वो आपने अपनी लोकल फाइल से उठाना है, किसी लोकल सब डायरेक्टरी से उठाना है, या किसी और वेबसाइट से आपने उस इमेज को पिक करना है और अपनी करंट साइट के अंदर यूज करना है. इमेज टैग is empty tag basically, and it contains attributes and does not have any closing tag. Mean image tag is not a pair tag, it's a singular tag. और डिफॉल्ट में इसकी जो वैल्यू है वो empty है, और इमेज टैग जो है इसके साथ attributes हैं. वो जो empty वैल्यू है इमेज टैग की, उसको आप इमेज के पाथ के जरिए आप फुलफिल करेंगे. So images can be added in this way if you do consider. अब image tag को elaborate कर रहे हैं. So image equal
source equals to image name. So image tag is an empty tag, उसके अंदर किसी वैल्यू नहीं जाना है. वो क्या है? सोर्स में आपने मेंशन करना है कौन सी फाइल है आपकी, और अगर आपकी लोकल फोल्डर है तो डायरेक्ट फाइल नेम आएगा, और अगर आपकी कोई और सब डायरेक्टरी है या कोई थर्ड वेबसाइट है तो आप बकायदा पाथ के साथ ऐड करेंगे. सो इमेज नेम यू विल मेंशन ओवर हियर, फॉर एग्जांपल abc.jpg. प्लीज यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा कि आपने फाइल एक्सटेंशन भी मेंशन करनी है. अगर आप फाइल का नाम, इमेज फाइल का सिर्फ नाम मेंशन करेंगे, उसकी एक्सटेंशन नहीं मेंशन करेंगे, देन यू विल फेस एन एरर. एंड एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वहां पे, वो ये है कि आपने फाइल एक्सटेंशन खुद नहीं देनी होती. किसी भी इमेज फाइल को जब आप पिक करेंगे अपने इमेज फोल्डर के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है, वो एक्सटेंशन हाइड होती हैं. सो आपने फाइल मेन्यू में जाके टूल्स की प्रॉपर्टीज में हिडन फाइल्स एक्सटेंशंस को शो करवाना है. उससे आपको फाइल की एक्सटेंशन शो हो जाएगी कि वो फाइल JPEG है, BMP फाइल है, PNG फाइल है, इमेज की कौन सी कैटेगरी है. सो समटाइम्स एक एरर ये किया जाता है कि आप बाय डिफॉल्ट एक फाइल का नाम लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक फाइल आपके पास पड़ी हुई है abc.png, आपको एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही .png, आपने फाइल का नाम चेंज किया, आपने फाइल के नाम में लिख दिया abc.jpg. अब आपको नजर आ रहा है abc.jpg, जबकि एक्चुअली जो फाइल का नाम है वो बन जाएगा abc.jpg.png, और फाइल की टाइप .png है. तो अब जब आप इसको ऐसे यूज करेंगे जैसे यहाँ पे है abc.jpg, तो फाइल आपको नहीं मिलेगी, फाइल नॉट फाउंड होगी, और आपको डिस्प्ले नहीं होगा इमेज, और प्रॉपर एरर भी नहीं आएगा. सो आपने हमेशा एक्सटेंशंस को शो करना है, और रेलिवेंट एक्सटेंशन ऑलरेडी इमेज की टाइप को असाइन है वो यूज करनी है. HTML syntax for add images to web pages is as that you will define the images with the image tag, and image tag doesn't have any closing tag, and the source attribute will specify the URL of the image, कि वो इमेज कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. अगर लोकल इमेज है तो डायरेक्ट फाइल का नाम, और अगर किसी और साइट से है तो आप पूरा एब्सोल्यूट URL विद इमेज फाइल एक्सटेंशन तक आप मेंशन करेंगे. Here is another tag that is used, alt tag. alt tag में आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं. अगर आप कोई इमेज डिस्प्ले नहीं होता ड्यू टू सम एरर, रिस्पॉन्स स्लो है इंटरनेट का, इमेज लोड नहीं हो रहा, या उस फोल्डर में वो इमेज डिलीट कर दिया गया जहां से आपने उसको रेफर किया था, तो इन सच केसेस आपके इमेज बॉक्स के अंदर जो वो टेक्स्ट अपीयर होगा जो अपने alt के अंदर मेंशन किया होगा. So the alt attribute basically specifies an alternate text for an image if the image is not displayed. अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ तो आपके alt टैग के अंदर जो attribute लिखा गया वो attribute आपको शो किया जाएगा. The alt attribute provides alternative information for an image. Other than image जो information है वो प्रेजेंट की जा रही है, that is said to be alternative information. So if a user is not able to see due to some reason, internet connection slow हो सकता है, I told you, an error, या यूजर की स्क्रीन की रिडीमेबिलिटी में प्रॉब्लम आ गया, या इमेज डिलीट हो गया, तो वहां पे alt का जो कैप्शन मेंशन होगा वो वहां पे डिस्प्ले होगा. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ब्राउजर इमेज को डिस्प्ले नहीं कर पाते, ब्राउजर की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, सो इन दैट केस भी alt ही डिस्प्ले होगा. Image can be added as image with source. Image stands for image, picture. It announces to the browser that image will go here on the page. So image tag ब्राउजर को अनाउंस कर रहा होता है, इन्फॉर्म कर रहा होता है, ब्राउजर को ये बतला रहा होता है कि आपने इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इमेज डिस्प्ले करना है, अपने आप को इमेज के लिए आप रेडी कर लें.
So source stands for source, and this again is an attribute and it tells the browser कि आपने जो इमेज डिस्प्ले करना है वो किस जगह से, किस लोकेशन से आपने उसको पिक करना है। इमेज का पाथ कहाँ पे है, जहाँ पे वो इमेज फाइल पड़ी हुई है, जिसको उठा के आपने इमेज के टैग को यूज करते हुए डिस्प्ले करना है। सो दीज आर द टू मेजर इमेज टैग्स एट्रीब्यूट्स जो नॉर्मली आमतौर पे हमारे इमेजेस की टाइप सपोर्टेड हैं। नॉर्मली दैट आर JPEG, GIF, BNG, JPEG and BMP. These are the extension for image files. कॉमनली जो इमेजेस की टाइप्स होती हैं वो JPEG होता है। JPEG जो है हमारी बहुत ज़्यादा कम स्पेस दे रहा होता है किसी भी इमेज के लिए और कॉम्प्रेस्ड होता है, इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती इसके अंदर। वाइल जो PNG फाइल है ये सबसे ज़्यादा लार्ज साइज ले रही होती है और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। GIF एनिमेटेड इमेज होता है हमारे पास। नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू ऐड इमेज इन द वेब पेजेस। अगेन HTML का टैग स्टार्ट हुआ, उसके अंदर एक हेड का टैग मेंशन हुआ, टाइटल मेंशन कर दिया हमने एडिंग इमेजेस। बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी के टैग के अंदर हमने H1 हेडिंग एडिंग इमेजेस मेंशन की, ये एज अ हेडिंग अपीयर होगी। एंड देन BR लाइन ब्रेक का टैग है। लाइन ब्रेक के बाद हमने इमेज को मेंशन किया। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर मेंशन है कि इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी है और इसके अंदर दो डायरेक्टरीज है, एक एग्जाम्पल की डायरेक्टरी है और एक इमेजेस की डायरेक्टरी है। सो इमेजेस की डायरेक्टरी के अंदर image1.jpg फाइल को हमने यूज करना है। सो हाउ वी आर मेंशनिंग इट, इमेज सोर्स बता रहे हैं उसको, रूट डायरेक्टरी डॉट डॉट से ले इमेज की सब डायरेक्टरी में जाए, image1.jpg फाइल है। सी इमेज का पाथ है, ये इमेज का टैग है जो एम्प्टी है, अभी इसको सोर्स से पता चल जाएगा और ये सोर्स का एट्रीब्यूट है। सो इसको एग्जीक्यूट करने पे हमारा ये वाला image1.jpg पड़ा हुआ था, ये हमारे पास एडिंग इमेजेस, इफ यू डू कंसिडर एडिंग इमेजेस हमारा टाइटल था वो मेंशन हुआ और ये एडिंग इमेजेस हेडिंग है। तो ये जो टॉप वाला एडिंग इमेज टाइटल है, ये एडिंग इमेज हमारे पास हेडिंग है और ये हमारे पास इमेज कंप्लीटली पेज पे डिस्प्ले हो गया जो भी हमारा image1.jpg पड़ा हुआ था। सो नाउ कंसिडरिंग हाइट एंड विड्थ for an image. You can also use the style attribute to specify the height and width of an image. जो भी आप height and width mention करेंगे वो default में जो वैल्यू लेगा वो पिक्सल में ले रहा होगा। So the value is mentioned in pixel notation. So it specifies the height and width of the image. आप चाह रहे हैं कितनी हाइट हो इमेज की जब डिस्प्ले हो, कितनी विड्थ तो आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, उसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अगर एक लार्ज साइज है आप उसको स्मॉल यूज करना चाह रहे हैं, स्मॉल को लार्ज करना चाह रहे हैं, तो यूजिंग हाइट एंड विड्थ आप उसको इमेज के साइज को स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मेथड ऑफ इट, इमेज सोर्स इक्वल्स टू इमेज नेम, यहाँ पे आप इमेज का पाथ बताएंगे विथ इमेज नेम एक्सटेंशन तक। हाइट के अंदर उसकी आप हाइट मेंशन करेंगे, 100 मेंशन की इस केस में, एंड विड्थ भी 100 मेंशन की। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हाइट एंड विड्थ इक्वल करें, इस एग्जांपल में हाइट एंड विड्थ इक्वल है, स्क्वायर बॉक्स में भी जाएगा। सो ऑल्ट एट्रीब्यूट शोज द अल्टरनेट टेक्स्ट व्हेन एन इमेज इज नॉट प्रेजेंट। सो ऑल्ट में हमने इमेज डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी करेंटली। सो वी कैन ऑल्सो यूज इमेज सोर्स, ऑल्ट, height and width together in one single line. Align attribute. It will align the image as desired. Do you want to display the image in the left side of the page, or you want to mention the image on the right side of the page, or do you want to display the image in the center of the page, or you want to display the image in the bottom of the page? सो उसके लिए आप अलाइन का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। सो इमेज सोर्स इक्वल्स टू इमेज नेम, अलाइन लेफ्ट। सो इमेज कहाँ डिस्प्ले होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे।
आप इसमें तमाम एट्रीब्यूट्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप मेंशन कर सकते हैं इमेज सोर्स, फाइल नेम, उसके बाद आप आल्ट का एट्रीब्यूट मेंशन कर दें। इन केस इमेज डिस्प्ले नहीं होता तो आल्ट का जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो। देन यू कैन मेंशन हाइट ऑफ द इमेज, that will be in pixel, then width of the image, that will be also in pixel, and then you can mention the align attribute, that is either left, right, bottom or top, center as well. These are the default values for the alignment. Left means align the image to the left of the web page or allocated area. Right, align the image to the right of the web page. Middle, align the image in the middle of the web page. Top, align the image at the top of the web page. Bottom, align the image at the bottom of the web page. So using these five values, left, right, middle, top and bottom, you can settle the image location at particular web page. If an image is not specified, you are not giving any file name to the source attribute, the browser expects to find the image in the same folder as the web page. So अगर आपने इमेज का आप स्पेसिफाई नहीं किया तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट उसको उसी फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर, जिस डायरेक्टरी में आपका वेब पेज एग्जिस्ट कर रहा है उसको सर्च करेगा. सो नॉर्मली इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू शुड स्टोर द इमेजेस इन द सेम सब फोल्डर. सो you must refer the file name if you want to display the image from it. और इन केस अगर आपने इमेजेस को एक सेपरेट सब फोल्डर में रखा हुआ है और आपने अपने वेब पेजेस को एक सेपरेट फोल्डर में रखा हुआ है तो फिर आपको इमेजेस को रेफर करते हुए आपको डायरेक्टरी का नाम भी मेंशन करना होगा और उसके साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर इमेज टाइप को भी मेंशन करना होगा जिसको आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इमेज फाइल और इमेज टाइप दोनों को. सो यू मस्ट इंक्लूड देन द फोल्डर नेम इन द सोर्स एट्रीब्यूट. फॉर एग्जाम्पल इमेज सोर्स डायरेक्टरी इमेजेस डायरेक्टरी थी एंड html5.gif ये एक इमेज की फाइल थी. आज में आपने मेंशन किया html5 आइकन ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए इन केस इमेज डिस्प्ले नहीं होता. GIF is a type of image and GIF stands for animated and GIF is a standard for the animated images. and अगर आप एनिमेटेड इमेज को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो फिर भी आपका वही मेथड होगा इमेज को डिस्प्ले करने का जैसे आप JPEG फाइल को कर रहे हैं. ये इमेज इटसेल्फ एनिमेटेड होगा एंड ब्राउजर सपोर्ट करते हैं इसको एनिमेटेड इमेज को डिस्प्ले करने के लिए. आल्ट पे आपने मेंशन कर दिया कंप्यूटर मैन. सो एक एनिमेटेड इमेज था उसको आपने डिस्प्ले किया programming.gif के जरिए और अगर वह इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ तो आल्ट में मेंशन हो जाएगा कंप्यूटर मैन. बॉर्डर एट्रीब्यूट. You can also add border around an image. Image source equals to image name. आपने इमेज का नाम दे दिया. Border equals to 2. Border means कि इमेज जहाँ पे डिस्प्ले हो वो जिस एरिया में डिस्प्ले हो रहा है एक स्क्वायर बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, उसकी बॉर्डर लाइन कितनी मेंशन हो उसका बॉर्डर आपने डिस्प्ले किया आउटर बाउंड्री का. सो आप सारे एट्रीब्यूट्स को जैसे कि हमने बैक स्लाइड के ऊपर देखा आपने जिफ इमेज को यूज किया. सो इसी तरह इसमें आप उसी जिफ इमेज को यूज करके बॉर्डर डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल इमेज सोर्स इक्वल्स टू लोकल फोल्डर में आपकी अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है यू विल मेंशन programming.gif और आप आल्ट का एट्रीब्यूट दे दें कंप्यूटर मैन और उसकी कोई हाइट मेंशन कर दें. सपोज हाइट इज 100 एंड उसकी विड्थ मेंशन कर दें एंड सपोज विड्थ इज 100 एंड आपने उसकी लोकेशन मेंशन कर दी. लोकेशन में आप अलाइन उसको सपोज सेंटर कर रहे हैं, सेंटर कर दें और इसका बॉर्डर आपने मेंशन कर दिया 2. तो व्हाट विल बी द आउटपुट? एक वेब पेज के सेंटर के अंदर
programming.gif वाला इमेज डिस्प्ले हो जाएगा, जिसकी बॉर्डर 2 होगा और इसकी हाइट और विड्थ 100 और 100 होगी। What is the difference between HTML 4.01 and HTML5? The following attributes are not supported in HTML5. Align का attribute support नहीं किया गया। Align attribute, border attribute, horizontal space, vertical space, these are not supported in HTML5. So align के attribute left, right, top, down, bottom, border जो size mention कर रहा है, horizontal space, vertical space, in HTML version 5, in latest version, these attributes are not supported. So now do consider image source equals to, अब हमने मेंशन कर दिया उसके अंदर डायरेक्टरी को इमेजेस का, image1.jpg, इमेज का नाम दे दिया, हाइट 200, विड्थ 200, एंड देन हमने हेडिंग बता दी, हाइट एंड विड्थ इज 200, एंड देन हमने लाइन ब्रेक मेंशन कर दी, और फिर अगेन हमने दोबारा वही इमेज डाल दिया और हमने हाइट जो है उसकी 300 कर दी, इंक्रीज कर दी। सो इमेज की डायरेक्टरी से उसी इमेज को दोबारा यूज किया, लेकिन उसकी हाइट और उसकी विड्थ को इंक्रीज कर दिया, और हमने मेंशन कर दिया कि नाउ द हाइट एंड विड्थ विल बी 300। सो बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू थ्रू दिस एग्जांपल, वी वांट टू सी द हाइट एंड विड्थ डिफरेंस बिटवीन द सेम इमेज। अब आप ये देखें कि ये पहले वाला इमेज वही है, दूसरे वाला भी इमेज वही है, लेकिन जब पहले वाला इमेज डिस्प्ले हुआ तो हाइट एंड विड्थ 200 के साथ डिस्प्ले हो रहा है, जबकि वही इमेज दोबारा डिस्प्ले होने पे हाइट एंड विड्थ 300 इंक्रीज हो रही है। सो 100 पिक्सल का डिफरेंस है। सो यहाँ पे 200 बाय 200 पिक्सल डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पे 300 बाय 300 पिक्सल डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये 100 पिक्सल्स का डिफरेंस आ रहा है इमेज के डिस्प्ले होने में। Now do see that image with text alignment, अब हम इसको align के टेक्स्ट के साथ यूज करेंगे। इमेज सोर्स इमेज image1.jpg, हमारे पास वही इमेज है, हाइट इक्वल्स टू 200 मेंशन कर दी, विड्थ 200 है। अब हमने इसमें बॉर्डर दे दिया। सबसे पहले हमने बॉर्डर दिया 10, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जिस एग्जाम्पल में ऐड हो रही, एंड दूसरी चीज अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम अलाइन कर रहे हैं इसको टॉप ऑफ द पेज। सो बॉर्डर मेंशन किया, अलाइनमेंट मेंशन की, एंड उसके बाद हमने उसकी इंफॉर्मेशन डाल दी, द इमेज शोज द मेन गेट ऑफ रोहतास फोर्ट, लाइन ब्रेक कर दी, और उसके बाद दोबारा हमने बॉर्डर वाले इमेज को दोबारा मेंशन किया, सेम इमेज को, हाइट 200 विथ 200, और बॉर्डर हमने 10 कर दिया। सो बॉर्डर पहले वाले में भी 10 था, बॉर्डर दूसरे वाले में भी 10 था, लेकिन पहले वाला जब इमेज डिस्प्ले होना चाहिए तो इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन टॉप, वाइल जो दूसरे वाला इमेज डिस्प्ले होना चाहिए इट शुड बी डिस्प्लेड इन मिडल। सो इन दिस वे द मेन गेट ऑफ दिस इज मेन इमेज ऑफ मेन गेट ऑफ रोहतास फोर्ट, अगेन वो इंफॉर्मेशन हमारे पास डिस्प्ले होनी चाहिए। सो इफ यू डू कंसिडर, हमारे पास द इमेज शोज द मेन गेट ऑफ रोहतास, ये टॉप पे हुआ है, और ये जो है हमारे पास इमेज मिडल पे आ रहा है। सो ये इमेज जो है इसका बॉर्डर भी 10 है, ये इमेज जो है आप देखिए ये बॉर्डर है, यहाँ पे भी इसका बॉर्डर जो है वो 10 है, यहाँ पे भी जो बॉर्डर है वो 10 है, और एक ही इमेज हमारे पास दोनों जगह डिस्प्ले हुआ है, और दोनों की हाइट जो हमारे पास 200 बाई 200 है, लेकिन जो पहले वाला इमेज है ये टॉप ऑफ द पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, जबकि जो दूसरे वाला इमेज है हमारे पास ये मिडल ऑफ द पेज डिस्प्ले हो रहा है। So as you can see, this is aligned top and this is aligned with middle. Similarly, you can perform the practice for bottom or for right, for center as well. Now, if you do consider, so हमने image का नाम गलत मेंशन कर दिया, wrong image में नाम मेंशन कर दिया हमने। So image source images, so image1.jpg फाइल का नाम था, लेकिन हमने image 11 wrongly 11 लिख दिया, फाइल का नाम लेट सपोज, हाइट 200 विथ 200, आल्ट में हमने मेंशन कर दिया मेन गेट ऑफ रोहतास फोर्ट।
अब हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, जबकि इससे ऊपर जो इमेज है हमारे पास वहां पे इमेज प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमने फाइल का नेम गलत मेंशन नहीं किया। सो आप देखें कि हमारे पास जो ऊपर वाला इमेज है, इमेज इज फाउंड करेक्ट, एंड इन द सेकंड द इमेज इज नॉट फाउंड। सो आल्ट का जो टेक्स्ट है हमारे पास मेन गेट ऑफ रोटास फोर्ट वो डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे इमेज का टेक्स्ट जो है वो करेक्ट नहीं है। सेकंड के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, मेन गेट ऑफ रोटास फोर्ट के अंदर आपका इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा, आल्ट का टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। So now considering another example, image with border. So if you do consider image source, images image1.jpg, height mention की हमने 200, width mention की 200 और border mention कर दिया 100. So again heading आएगी images with border. ये बॉडी के अंदर हेडिंग है, लिहाजा ये बॉडी में डिस्प्ले होगी, और लाइन ब्रेक, उसके बाद इमेज की सारी इंफॉर्मेशन, एंड देन उसके बाद बॉडी टैग क्लोज हो गया। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो वी विल हैव इमेज विद बॉर्डर, टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, उसके बाद हमारे पास बॉर्डर आ गया, एंड उसके बाद हमारे पास इमेज 2x200 का बॉर्डर है, और हमारे पास 2x200 की हमारी हाइट एंड विड्थ के पिक्सल हैं, और 10 का हमारा बॉर्डर है, ये डिस्प्ले हो गया। So when we want to use image for linking, अब हमने इमेज को डिस्प्ले करना सीख लिया, अब हम एक इमेज को लिंक करने जा रहे हैं। So how we are going to link the images? We can put images between a anchor tag starting and /a anchor tag ending tag instead of tags to link other documents or portions of the page. So h reference, उसके बाद पेज रेफरेंस, जिस पेज को हम लिंक करने जा रहे हैं इमेज के साथ, उस पेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंड इमेज सोर्स, इमेज का नाम मेंशन कर देंगे जिस इमेज के बैक पे हम इसको हाइपर लिंक करना चाह रहे हैं। सो एच रेफरेंस के अंदर सबसे पहले हम उस पेज का मेंशन करेंगे जिस पेज को हम लिंक करने जा रहे हैं। अगर वो लोकल पेज है तो उसका डायरेक्ट पेज का नाम आ जाएगा विद एक्सटेंशन, और अगर एक थर्ड वेबसाइट के ऊपर पेज है तो रिमोट पेज जो है उसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ आ जाएगा हमारे पास। और इमेज सोर्स के अंदर हम मेंशन कर देंगे जिस इमेज को हम हाइपरलिंक करने जा रहे हैं। सो h reference equals to abc.html tag closed. Now the image tag is started, और ये इमेज टैग भी आपके एंकर टैग के अंदर, रेफरेंस हाइपरलिंक के जो एंकर टैग है उसके अंदर ही इंटीग्रेट हुआ है। So image source equals to image.jpg and it is closed, and then anchor tag is closed accordingly. So now do consider the example. Anchor tag is started, h reference equals to, अब हम इसको एक थर्ड वेबसाइट से लेकर आ रहे हैं, http://www.nas.edu.pk/pages/home.aspx। सो हम चाह रहे हैं कि जब हम अपने इमेज को क्लिक करें तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाए। अब हमारे पास इमेज कौन से हैं? इमेज सोर्स इक्वल्स टू :/images/nas.jpg। हमने ये इमेज बता दिया, हमारी लोकल डायरेक्टरी इमेज की फाइल से ही आ रहा है, और इस इमेज के साथ बैक पे ये URL जो है ये लिंक कर दिया गया। इमेज को अलाइन कर रहे हैं हम मिडल पे, हाइट दे रहे हैं उसकी 100, विड्थ उसकी है 100, और एंकर टैग को क्लोज कर रहे हैं। सिमिलरली हम एक और लिंक भी कर रहे हैं, डेट इज href इक्वल्स टू http://www.comsets.edu.pk, और उसका हम लोकल कॉमसेट्स की डायरेक्टरी से इमेज उठा रहे हैं comsets.jpg, और उसको भी हम अलाइन मिडल कर रहे हैं, और 100 उसकी भी हम लोगों ने हाइट एंड विड्थ मेंशन की। मूविंग टुवर्ड्स सेम फॉर द थर्ड केस,
हमने naml.jpg इमेज उठाया और उसको लिंक किया naml.edu.pk से, उसको भी अलाइन किया मिडल में, हाइट 100 दी और विड्थ 100 दी। तो इस तरह हमने लिंक किया। लेट्स सी टू द नेक्स्ट वन। सो image maps, this is our next concern for images. Image map allows you to add multiple links to the same image. आपके पास एक इमेज है, आप उस इमेज के पार्ट्स करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि पार्ट 1 को क्लिक करें तो एक लिंक खुल जाए, पार्ट 2 को क्लिक करें तो दूसरा इमेज खुल जाए। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट एन इमेज मैप। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का मैप है और एक इमेज के तौर पे आपके पास आ रहा है, और उस इमेज में आप चाह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद को क्लिक करें तो इस्लामाबाद की रेलिवेंट साइट खुल जाए, आप लाहौर को क्लिक करें तो लाहौर की रेलिवेंट साइट खुल जाए, एंड सो एल्स। सिमिलरली, अगर एक आपके पास ह्यूमन फेस है, उसके आपने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और आप चाह रहे हैं कि आप उसकी आंख पे, आइज पे क्लिक करें तो आइज से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वाले पेज पे चला जाए, और आप अगर उसके जो है वो हेड पे क्लिक करें तो उसके हेड वाले पेज की इंफॉर्मेशन में चला जाए। तो अपने एक इमेज के पार्ट्स बनाए हुए, और जिस इमेज के जिस पार्ट को आप क्लिक करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वही पेज आपके पास डिस्प्ले हो, उसी की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको अपीयर हो जाए। सो ईच लिंक कैन पॉइंट टू अ डिफरेंट पेज, एक नए पेज को लिंक करेगी, एंड ईच ऑफ दीज क्लिकेबल एरियाज इज नोन एज हॉटस्पॉट। सो जो भी क्लिकेबल एरिया होंगे आपके पास इमेज के अंदर, ये पार्ट्स जो क्लिकेबल हैं इनको आप क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट। सो जो क्लिकेबल नहीं है उनको आप हॉटस्पॉट नहीं कहेंगे। नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ मैप। स्टेप 1, डिफाइन अ मैप। आपने मैप का टैग यूज किया, नेम इक्वल्स टू मैप नेम, मैप को एक नाम दे दिया आपने, जो भी आपका मैप का नाम होगा। एरिया शेप, आप अपनी इमेज को डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसको रेक्टेंगुलर शेप में प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो एरिया शेप में आपने लिंक शेप मेंशन की, जिस शेप के साथ आप उसको लिंक करने चाह रहे हैं। आप उसको शेप में प्रेजेंट करने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे, इमेज को स्प्लिट करेंगे डिफरेंट एरियाज में, और जो इमेज का हर एरिया होगा उसकी कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि किन एरिया के किन कोऑर्डिनेट्स को आप लिंक करने जा रहे हैं। एंड देन आप एच रेफरेंस मेंशन करेंगे कि इस एरिया को क्लिक करने पे व्हाट डू यू वांट कि इमेज कहाँ पे लिंक रीडायरेक्ट करे। एंड देन द क्लोजिंग टैग ऑफ योर मैप। सो सबसे पहले आपने मैप का टैग स्टार्ट किया, मैप का नाम मेंशन किया, देन आपने उसके एरिया शेप के एट्रीब्यूट को यूज किया, और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए, और उन कोऑर्डिनेट्स के साथ आपने जिस चीज को भी लिंक करना है आपने वो पेज लिंक कर दिया। सो एरिया कैन कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स। रेक्टेंगुलर के लिए रेक्ट यूज करते हैं आप, RECT रेक्ट। सर्कल के लिए आप कंप्लीट सर्कल यूज करते हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स के लिए आप क्वाड यूज करते हैं। सो दीज आर द 3 डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन डिफाइन अ मैप फॉर द इमेज to be hyperlinked. Now defining a map, step 2. First of all आपने मैप को डिफाइन किया, मैप का एरिया डिफाइन किया, मैप की जो है वो शेप डिफाइन की, कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए। अब आपने मैप को अप्लाई करना है, अब अपने मैप को अप्लाई करना है अपने रेलिवेंट लिंकिंग के लिए। सो अप्लाइंग मैप ऑन एन इमेज, कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं? इमेज सोर्स इक्वल्स टू इमेज टाइटल। अपने मैप को पहले डिफाइन कर लिया था, राइट? सो इमेज टाइटल आप मेंशन करेंगे जो भी है विथ फाइल एक्सटेंशन .jpeg, .gif, .png, एंड देन यूजर मैप इक्वल्स टू #मैप नेम, और आगे आप मैप का नाम मेंशन कर देंगे, जो भी आप मैप नेम चाह रहे हैं आप लिंक कर लें, देन मैप नेम यू वांट टू हैव।
सो इमेज सोर्स के अंदर आपने इमेज मेंशन किया और मैप की एट्रीब्यूट अब ऑलरेडी इफ यू डू सी प्रीवियस स्लाइड में तो आपने मेंशन कर दिया था ऑलरेडी। मैप का नेम क्या है, मैप की अंदर शेप कौन सी यूज हो रही है, मैप के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं और मैप का एच रेफरेंस जो था वो आपने ऑलरेडी ये बता दिया। सो इफ आई गो टू द प्रीवियस स्लाइड एंड वन मोर प्रीवियस स्लाइड, सो ये जो नाम आपने मैप में डिफाइन किया था ये यहाँ पे आप हैश के साथ यूज करेंगे। सो नाउ सी विद एन एग्जाम्पल, बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ आपके पास h1 इमेज मैप्स h1 क्लोज। h1 इज द हेडिंग टैग, ये बॉडी के टैग के अंदर एग्जाम्पल आ रही है खाली। सो इमेज मैप लिखा होगा h1 की हेडिंग में। देन द स्टार्टिंग टैग एंकर ब्रैकेट एंड देन मैप नेम इक्वल्स टू माई मैप आपने क्लोज कर दिया। सो आपने मैप को एक नाम मेंशन कर दिया, मैप नेम यहाँ पे आ गया। देन सेकंड इज एरिया और शेप मेंशन की। आपकी 3 शेप्स हैं तो आपने इसमें से रेक्टेंगुलर शेप को एक्सेस कर लिया कि आप कौन सी शेप चाह रहे हैं। रेक्टेंगुलर शेप आपके पास आ गई। उसके बाद आपने कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए, ये आपके सारे रेक्टेंगुलर शेप के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। सो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 212 210, सेकंड 75, थर्ड 275 एंड फोर्थ 100। सो आपने बता दिया कि इस रेक्टेंगुलर शेप में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे जहां पे इमेज को आपने हाइपरलिंक करना है। देन आपने एच रेफरेंस मेंशन किया। एच रेफरेंस के अंदर आपने मेंशन किया कि किसको लिंक करना चाह रहे हैं आप इस पर्टिकुलर इमेज के साथ। उसके लिए आपने w3 comstats.edu.pk लाइब्रेरी / टाइटल तक जो भी आपकी फाइल थी उसको आपने लिंक कर दिया। नाउ डू कंसीडर आफ्टर दैट आपने एक और एरिया शेप रेक्टेंगुलर बताई, उसकी कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए और आपने उसमें कॉमस्टेट्स के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कोई चीज लिंक कर दी। देन आपने एक और शेप रेक्टेंगुलर बनाई, उसके आपने कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए और उसके बाद आपने उसको डबल ई के एक और यूआरएल के साथ लिंक किया और सीएस डिपार्टमेंट के टाइटल के साथ लिंक किया। अब आपने मैप एंड कर दिया। सो एक मैप को आपने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में और एक को लाइब्रेरी के साथ लिंक कर दिया, एक को आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का हाइपर लिंक क्लिक कर दिया और एक पे आपने कॉमस्टेट्स के सीएस डिपार्टमेंट को लिंक कर दिया। अब आपने इमेज को सेंटर भी किया साथ में, इस सेंटर का टैग यूज हो रहा है। इसमें आपने मेंशन किया इमेज का सोर्स कौन सा है, लोकल डायरेक्टरी से map.jpg आपने पिक किया लोकल डायरेक्टरी से, और यूज मैप कौन सा है, ये जो आपने यहाँ पे पहले मेंशन किया था माई मैप। एंड ये कैपिटल एंड स्मॉल जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो यहाँ पे क्लियरली टैग से मेंशन है ये मैप है, ये मैप का नेम है, ये आप उसका एरिया का टैग यूज कर रहे हैं, ये आपकी शेप है, ये आपकी कोऑर्डिनेट्स है, ये आप उसको लिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसका इमेज डाल रहे हैं और यहाँ पे उसके मैप को आप यूज कर रहे हैं। Proceeding towards onward, video. How we are going to add video tag? The video tag is used to add a video to a web page. किसी भी वेब पेज में आपने अगर वीडियो को इंटीग्रेट करना है तो वीडियो टैग को यूज करेंगे। एंड दिस टैग इज प्रोवाइडेड इन HTML5। प्रीवियस वर्जन में वीडियो टैग आपके पास अवेलेबल नहीं था। फॉर द वीडियो टैग अगेन आपके पास एक सोर्स एट्रीब्यूट है। द सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ द वीडियो टैग इज यूज्ड टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ द वीडियो। जिस तरह इमेज के लिए एक सोर्स था, इसी तरह आपके पास वीडियो के लिए एक सोर्स एट्रीब्यूट है जो आपको बताएगा कि आपकी वीडियो किस पाथ पे पड़ी हुई है। सो वी कैन ऐड अ वीडियो इन आवर वेब पेज एज। सो जैसे यहाँ पे इमेज था उसकी जगह सिर्फ वीडियो आ गया एंड देन सोर्स इक्वल्स टू सोर्स के बाद आपने वीडियो का नाम और वीडियो की टाइप मेंशन कर दी। अगर आपकी ये लोकल डायरेक्टरी है
तो आप डायरेक्ट जो है वीडियो का नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई और डायरेक्टरी है तो आपने डायरेक्टरी के साथ मेंशन करनी है। और अगर आप इसको किसी और वेबसाइट से वीडियो को पिक कर रहे हैं तो कंप्लीट URL आपने मेंशन करना है। और URL के अंदर आपने वीडियो की फाइल टाइप तक आपने सारा सोर्स मेंशन करना है वीडियो का। Now how a video is going to be added in your program? वीडियो की विड्थ आप मेंशन करेंगे, विड्थ उसकी 320 आपने मेंशन कर दी। और वीडियो की हाइट मेंशन कर दी आपने 240 वीडियो की हाइट है। ये वीडियो के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एंड देन वीडियो के कंट्रोल्स आपने मेंशन कर दिए। कंट्रोल से क्या मुराद है? कंट्रोल से मुराद ये है कि अगर आपने कंट्रोल्स डिस्प्ले करवाए, कंट्रोल का टैग, तो वीडियोस जब प्ले होती हैं उसमें डिफरेंट कंट्रोल्स आते हैं, प्ले, फॉरवर्ड, नेक्स्ट, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। तो ये कंट्रोल आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। इन केस अगर आपने कंट्रोल का टैग्स एट्रीब्यूट्स मेंशन नहीं किए तो आपको ये कंट्रोल्स डिस्प्ले नहीं होंगे, जस्ट वीडियो प्ले हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सोर्स movie.jpeg और movie.mpeg4 आपके पास इमेज था JPEG फॉर्म में, तब मूवी आपके पास MPEG4 मूवी की टाइप बता रही है। सो सोर्स में आप क्या मेंशन कर रहे हैं? मूवी को मेंशन कर रहे हैं, वीडियो को मेंशन कर रहे हैं। और टाइप क्या है आपके पास? वीडियो। वीडियो के फोल्डर से आप बता रहे हैं कि ये MPEG4 टाइप है जिसको प्ले करना है। देन आपके पास एक और सोर्स में से movie.ogg है और टाइप उसकी क्या है? वीडियो की OGG फाइल एक्सटेंशन है। So your browser does not support the video tag, that's why you can use sources over here. If your browser is supporting already video tag, then you can directly write video source equals to movie.jpeg. But if the browser is not supporting the video tag, you can use source tag over here in order to carry on with the videos in your application. So what are the video formats? नॉर्मली जो वीडियो फॉर्मेट्स इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, MPEG4 ये एक वीडियो का फॉर्मेट है, WebM ये एक और वीडियो का फॉर्मेट है जो हम नॉर्मली प्ले करवा रहे होते हैं, एंड OGG। सो दीज आर 3 वीडियो फाइल फॉर्मेट्स। एट्रीब्यूट्स ऑफ वीडियो टैग: ऑटो प्ले, कंट्रोल, हाइट एंड लूप। These are very important attributes you need to understand and discuss accordingly. Autoplay, अगर ये वाला एट्रीब्यूट आपका यूटिलाइज किया जाए तो जब भी आप एक वेबसाइट पे जाएंगे तो जो ही आप उस वीडियो पे जाएंगे, अभी आपने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, आपकी वीडियो खुद ही प्ले हो जाएगी। ऑटो प्ले के लिए आपको किसी बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी। लाइक प्ले का बटन है, आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी। कंट्रोल्स, अगर आपने कंट्रोल की ऑप्शन को इनेबल किया है तो आपके डिफरेंट कंट्रोल्स, प्ले, पास, फॉरवर्ड, नेक्स्ट, आपको वीडियो के साथ नजर आएंगे। और अगर आपने कंट्रोल को नहीं यूज किया तो ये आपको नजर नहीं आएंगे। हाइट ऑफ द वीडियो, कि आप किस डायमेंशन में कितनी हाइट में आप वीडियो को प्ले करवाना चाह रहे हैं। एंड लूप, अगर आप एक वीडियो को अगेन एंड अगेन प्ले बैक करवाना चाह रहे हैं एक वीडियो बार बार चलती रहे, तो आप उसमें लूप का एट्रीब्यूट जो है वो यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी विद एन एग्जांपल। HTML हेड, टाइटल, एडिंग वीडियो, टाइटल, हेड, बॉडी, H1 एडिंग वीडियो। अब लाइन ब्रेक की। नाउ सी वीडियो इक्वल्स टू सोर्स कॉलन वीडियो के फोल्डर के अंदर से vid.mpeg4 वीडियो की टाइप थी, इसको उठा रहे हम। ये पूरा सोर्स, उसका पाथ नेम मेंशन हो रहा है। ऑटो प्ले लूप, ऑटो प्ले लूप के अंदर ये बार बार वीडियो प्ले करेगी। सो लूप एट्रीब्यूट इज अगेन एंड अगेन रीप्लेइंग दैट वीडियो।
एंड कंट्रोल्स, आपने कंट्रोल एट्रीब्यूट मेंशन कर दिया, कंट्रोल आएंगे आपके पास। हाइट आपने कंट्रोल की यहाँ पे मेंशन की 300 एंड वीडियो का टैग क्लोज हो गया। So the first one is a video tag, the second one is the source of the video that is to be displayed, the third one is autoplay जिसके अंदर आपकी वीडियो प्ले हो रही है, और the fourth is loop जो है वो रिप्ले करेगा, आपकी रिपीटिशन करेगा, and then the fifth one over here is control attribute, कंट्रोल के लिए आपके सारे कंट्रोल्स शो होने हैं यहाँ पे, and height is also mentioned over here. So in this way you are adding a video with the required attributes in your web page. Now the audio. The audio tab is used to add a audio to a web page. This tag is provided in HTML5. The source attribute of the audio tag is used to indicate the source of the audio, and we can add audio to our page as mentioned, audio source equals to abc.mp3. Just like videos, हम अपने वेब पेज के अंदर ऑडियोज भी ऐड करवा सकते हैं। ऑडियोज को ऐड करवाने के लिए हमें ऑडियो का टैग यूज करना होता है। सिमिलरली एज इमेजेस, एज वीडियोज, नाउ एज ऑडियो टैग। ऑडियो टैग HTML5 में सपोर्टेड है, और ऑडियो टैग के अंदर हम लोग सोर्स में ऑडियो का पाथ मेंशन कर रहे होते हैं। ऑडियो कैन ऑल्सो बी एडिड एज सोर्स इक्वल्स टू host.ogg इक्वल्स टू टाइप audio.ogg, सोर्स इक्वल्स टू host.mp3, टाइप इक्वल्स टू audio/mpeg। सो मेंशन कर रहे हैं कि आपकी कौन सी फाइल टाइप है, जो भी फाइल टाइप है उसके अगेंस्ट आपका यहाँ पे ऑडियो प्ले होगी, इन केस योर वेब ब्राउजर इज नॉट सपोर्टिंग दैट ऑडियोज, एंड देन इन द एंड ऑडियो टैग इज गेटिंग एंडेड। सो जस्ट लाइक वीडियोज, you can also add audios in your web page, in your web application. Audio format supported by audio tags. These are the audio file formats supported by web-based applications: MPEG-3, OGG, audio OGG, and WAV file. Most common audio file is MPEG-3 that is supported. So audio also have attributes. What are the attributes for audio? Autoplay, controls, and loop. Autoplay is the same just like video. जब आप ऑडियो प्ले करेंगे तो आप ऑडियो पे जाएंगे तो विदाउट प्रेसिंग एनी बटन ऑडियो प्ले हो जाएगी। कुछ वेबसाइट्स में भी आपने देखा होगा कि जब वो वेबसाइट लोड होती हैं तो बैकग्राउंड के अंदर वो प्ले हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली म्यूजिक या जो भी साउंड है वो प्ले हो जाता है। सो वो इसीलिए कि ऑटो प्ले का उसके टैग यूज हुआ है। देन कंट्रोल्स, आपने जो भी ऑडियो के कंट्रोल्स रखने हैं, नेक्स्ट ट्रैक चलाना है, बैकवर्ड वॉइस पे जाना है, स्टॉप करना है, तो आप कंट्रोल्स के टैग को यूज करेंगे। एंड लूप इज द फाइनल टैग दैट इज यूज्ड। अगर आप प्ले बैक करवाना चाह रहे हैं बार बार तो आप लूप का टैग यूज करेंगे। सो दीज आर द टैग्स फॉर द ऑडियो एट्रीब्यूट। कंट्रोल, द कंट्रोल जो है हमारे पास ऑडियो में, ये एक बुलियन एट्रीब्यूट है ऑडियोज के अंदर। सो ऑडियो कंट्रोल में क्या क्या आता है नॉर्मली? प्ले, आप प्ले करवाना चाह रहे हैं, प्ले का कंट्रोल है। पास का कंट्रोल है आपके पास। सीकिंग एंड वॉल्यूम, एक ही वॉल्यूम का कंट्रोल होगा, उसी को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर दी कॉमन टैग्स दैट आर अवेलेबल इन ऑडियो: प्ले, पास, सीकिंग एंड वॉल्यूम. So let's see what we have studied in today's lecture. In today's lecture we have studied adding images to the web page using images as link. Then we have studied map of the image, adding audio and video to the web page. This is the summary for the today's lecture. We have studied in detail how we are going to add
image in our application. Here we have seen the type of different images in detail. We have seen that different type of images can be added: JPEG image, PNG, GIF. GIF is an animated image. For using any image, we will mention image tag and then we will mention the source of the image tag. सोर्स के अंदर हम उसका पाथ मेंशन कर देंगे. अगर वो लोकल डायरेक्टरी से फाइल उठा रहा है तो हम डायरेक्ट फाइल का नाम दे देंगे, और अगर वो रिमोट डायरेक्टरी से उठा रहा है, रिमोट साइट है, तो पूरा एब्सोल्यूट यूआरएल विद फाइल नेम तक मेंशन करेंगे. इमेज के अंदर हम इमेज को हाइट एंड विड्थ के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, उसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं. इमेज के एक और एट्रीब्यूट आल्ट का एट्रीब्यूट है. अगर आपकी एप्लीकेशन में आल्ट के एट्रीब्यूट यूज होगा और अगर किसी वजह से आपका ब्राउजर इमेज को लोड नहीं कर पा रहा, तो जो आल्ट के एट्रीब्यूट में अपनी वैल्यू मेंशन की होगी वो वैल्यू वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी. इसके साथ साथ आपने बॉर्डर भी यूज किया. आप इमेज को बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर प्रेजेंट कर देगा कि आपकी इमेज की बॉर्डर साइज क्या है. इसके साथ साथ आप इमेजेस को अलाइन भी कर सकते हैं. आप इमेज को लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हैं, आप इमेज को राइट अलाइन करना चाह रहे हैं, आप इमेज को टॉप ऑफ द पेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, आप इमेज को बॉटम ऑफ द पेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, आप उसको सेंटर में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो वो सारी एट्रीब्यूट्स जो है आप अलाइन के अंदर मेंशन कर सकते हैं. सो बेसिकली आप इमेज के अंदर इमेज का सोर्स मेंशन करेंगे, उसके बाद उसके आल्ट का एट्रीब्यूट मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद आप उसकी हाइट देंगे, उसकी विड्थ देंगे, उसके बाद आप उस इमेज का बॉर्डर दे सकते हैं, और उसके बाद आप इमेज के डिस्प्ले करवा सकते हैं अलाइनमेंट कि वो सेंटर, लेफ्ट, राइट, बॉटम, डाउन, जहां पे भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप करवा सकते हैं. इमेजेस के बाद हमने इमेज के मैप को देखा कि अगर हम एक इमेज को स्प्लिट करके उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को हाइपरलिंक करना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे हाइपरलिंक करेंगे. उसके लिए हमें इमेज की 3 तरह की शेप सपोर्टेड है. शेप्स में जो इमेज का एरिया आएगा वो रेक्टेंगुलर इमेज आ सकता है या इमेज सर्कुलर फॉर्म में नॉर्मली आ सकता है, और हम उसको मेंशन करेंगे कि इमेज की टाइप कौन सी है, रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है. लेट्स सपोज इफ इट इज ए रेक्टेंगुलर इमेज, तो फिर हम उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करते हैं कि किन किन कोऑर्डिनेट्स को हमने हाइपरलिंक करना है. उसके सारे कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करने के बाद हम उसमें रेफर कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर यूआरएल को जिसको हम हाइपरलिंक करना चाह रहे हैं इमेज के उस पार्ट पे, इमेज मैप पे. उसके बाद हमने जिस चीज को स्टडी किया आज, वो हमने इमेज के अंदर जो है वो वीडियोस को देखा. हमने देखा कि हम वीडियोस को भी इमेज अपनी वेब पेज के अंदर जो है वीडियोस को भी प्ले करवा सकते हैं. वीडियोस के लिए हमने वीडियो का टैग यूज किया. इन केस आपका वेब ब्राउजर वीडियो के टैग का सपोर्ट नहीं करता, सो आप सोर्स का टैग मेंशन करेंगे और सोर्स का टैग आपकी वीडियो प्ले करवा देगा. उसके बाद हमने जो चीज देखी वो वीडियो के टैग के अंदर कि वीडियो की टाइप्स को देखा हमने. MPEG-4, OGG ये कॉमन टाइप्स हैं जो वीडियो की सपोर्टेड है. इसके साथ साथ हमने वीडियो के अंदर जो है वो वीडियो का साइज भी देखा कि वीडियो के साइज भी हम करवा सकते हैं शो. सो साइज में हम वीडियो के साइज को शो करवा देंगे. इसके अलावा हमने वीडियो के अंदर ऑटो प्ले की ऑप्शन देखी कि अगर हम एक ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो वीडियो जो है वो ऑटो प्ले हो जाएगी. इसके साथ साथ हमने जो चीज देखी वो वीडियो के अंदर कंट्रोल्स देखे. डिफरेंट तरह के वीडियो के कंट्रोल्स हैं. नेक्स्ट के, फॉरवर्ड का कंट्रोल है, बैकवर्ड क्लिक कंट्रोल है, पास का कंट्रोल है. सो अगर आप कंट्रोल्स का टैग मेंशन करेंगे, एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे आप कंट्रोल का, तो वीडियो जो है आपकी कंट्रोल शो करेगी. सो अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो वो नहीं करेगी. सो इसके अलावा हमने वीडियो में लूप का टैग देखा. लूप के टैग को अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो वीडियो जो है बार बार प्ले हो जाएगी आपकी. वीडियो के बाद हमने जो है वो ऑडियो को देखा, और ऑडियो भी उसके जो एट्रीब्यूट है ऑडियो का, वो सबसे पहले ऑडियो का एट्रीब्यूट है एंड देन सोर्स के बाद आप उसका फाइल नेम यूज करेंगे. अगर लोकल डायरेक्टरी है तो आप लोकल डायरेक्टरी में फाइल नेम दे देंगे. सब डायरेक्टरी है तो सब डायरेक्टरी का नाम और फाइल नेम तक देंगे. अगर आप किसी तीसरी वेबसाइट से आप ऑडियो को अपनी साइड में प्ले करना चाह रहे हैं तो आप उसका कंप्लीट फाइल नेम विद एक्सटेंशन तक मेंशन करेंगे.
ऑडियो के अंदर भी नॉर्मली हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो MP3 और .wav फाइल को हम सपोर्ट कर रहे हैं ऑडियो फाइल्स के अंदर। और इसके अलावा जो चीज़ हमने देखी वो ऑडियो के भी कुछ एट्रीब्यूट्स देखे। ऑडियो का एक एट्रीब्यूट हमने ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट देखा। बाय डिफ़ॉल्ट में ऑडियो को जो अगर आप क्लिक नहीं करेंगे विदाउट, तो आप उसके ऊपर जाएंगे माउस को, तो आपका ऑडियो ऑटो प्ले हो जाएगी। इसके अलावा ऑडियो के अंदर हमने जो एक देखा एट्रीब्यूट, वॉल्यूम का एट्रीब्यूट देखा। वॉल्यूम का एट्रीब्यूट में आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमने एट्रीब्यूट देखे अपने ऑडियो के अंदर, वो हमने लूप का एट्रीब्यूट देखा कि लूप का एक एट्रीब्यूट है, अगर आप उसको यूज करेंगे सो आपकी ऑडियो बार बार प्ले हो जाएगी, और अगर नहीं करेंगे तो ऑडियो वंस ही प्ले होगी अगर ऑटो प्ले का कंट्रोल यूज किया आपने। सो दीज आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर द ऑडियो। सो इसके अलावा हमने जो है वो एरिया देखा था इमेजेस के अंदर कि एरिया की आपने डिफरेंट शेप्स देखी थी कि एरिया था, आप रेक्टेंगुलर एरिया यूज कर सकते हैं, आप उसके अंदर सर्कुलर एरिया यूज कर सकते हैं जो आपके क्लिकेबल बन जाएगा आपका एरिया जो है। सो आज की लेक्चर के अंदर हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर के साथ हाइपरलिंक देखा था, और अब हमने इमेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट इज इमेजेस, और इमेजेस की टाइप्स को, और एक इमेज की मैप को, और उसके बाद हमने लेटर ऑन वीडियोस को, एंड देन वीडियोस की डिफरेंट टाइप्स को, और देन वीडियोस के बाद हमने ऑडियोस को। इन सब की कौन कौन सी टाइप सपोर्टेड है, इन कौन कौन से एट्रीब्यूट सपोर्टेड है, और इन सब को कैसे यूटिलाइज करना है अपनी वेब पेज के अंदर, इनके कोड्स को हमने देखा, इनके एग्जांपल्स हमने करके देखी, और इनके जरिए हमने हाइपर लिंकिंग करने देखा कि हम किस तरह एक इमेज के साथ, एक वीडियो के साथ और एक ऑडियो के साथ हाइपर लिंक कर सकते हैं किसी भी लिंक को, कि उसको क्लिक करने के ऊपर वो हाइपर लिंक हो जाए उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर। सो दिस इज ऑल वी स्टडीड इन टुडेज लेक्चर, एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।